دنیا میں پائے جانے والی سوانس کی کل 7 نسلوں میں سے 5 سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔ ساؤتھ امریکن بلیک نیکڈ سوان کی صرف گردن سیاہ اور جسم کے باقی تمام پر سفید ہوتے ہیں۔ سوانس میں بلیک سوان ہی واحد آبی پرندہ ہے جس کے جسم کے تمام پر سیاہ ہوتے ہیں، سوائے ان کے پرائمری فیدرز یا اڑان والے پروں کے جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ سفید پرائمری فیدرز صرف اڑان کے دوران ہی دکھائی دیتے ہیں۔ سوان اور انسانی تعلق ہزاروں سال پرانا ہے۔ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کی ثقافت، فنون و ادب، قصے کہانیوں اور مذہبی عقائد میں سوانس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بلیک سوان کی دریافت سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ سوانس صرف سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔ انٹونی کائن پہلا یورپی ملاح تھا جس نے 1636 میں جنوب مغربی آسٹریلیا کے جزیرہ برنی میں پہلی دفعہ بلیک سوان کو دیکھا۔ واپسی پر جب اس نے یورپی لوگوں کو کالے رنگ کی سوانس کے بارے میں بتایا تو کسی نے بھی اس کے دعوے پر یقین نہیں کیا۔ تقریباً 60 سال بعد ایک ڈچ سیاح ولیم ڈی ولیمنگ نے 1697 میں بلیک سوان کو مغربی آسٹریلیا کے ایک دریا کے ارد گرد اس مقام پر دیکھا جہاں آج آسٹریلیا کا مشہور شہر پرتھ آباد ہے۔ ولیمنگ نے ہیریسن جزیرے سے چند بلیک سوان پکڑی اور یورپ لے آیا۔ گو کہ یہ تمام سوانس راستے میں ہی مر گئیں، لیکن یورپی لوگوں کو کالے رنگ کی یہ سوانس دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ بلیک سوان مغربی آسٹریلیا کا ریاستی پرندہ ہے جس کی تصویر وہاں کے جھنڈے اور کوٹ آف آرمز پر موجود ہے۔ جنوب مغربی آسٹریلیا، مشرقی آسٹریلیا اور ان سے ملحقہ علاقے بلیک سوان کے آبائی علاقے سمجھے جاتے ہیں۔ نارتھ ویسٹ کیپ، کیپ لیوون اور تھارٹن، تسمانیہ، مرے ڈارلنگ بیسن کے نشیبی علاقوں، دریاؤں، ندی نالوں اور جھیلوں کے ارد گرد ان کی قدرتی پناہ گاہیں پائی جاتی ہیں۔ 1697 میں یورپ میں متعارف ہونے کے بعد اپنے منفرد رنگ روپ، خوبصورت جسمانی خد و خال اور دلکش چال ڈال کی وجہ سے بلیک سوان پورے یورپ میں بہت مقبول ہوئی۔ ڈالش بلیک سوان کے حوالے سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بلیک سوانز ڈالش واٹر پر تیرتی نظر آتی تھی۔ پھر وہاں یہ خوبصورت مخلوق پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی نظر ہو گئی۔ آج بھی ڈالش بلیک سوانز کی وجہ سے ایک مشہور مقام ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ یہاں بلیک سوانز میں دوسرے آبی پرندے دیکھنے آتے ہیں۔ 1864 میں بلیک سوان کو نیوزی لینڈ میں متعارف کروایا گیا۔ وہاں کے موزوں ترین موسمی حالات اور بلیک سوان کو شکار کرنے والے جانوروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن پھر ایک خوفناک طوفان کی وجہ سے بلیک سوانز کی بہت زیادہ ہلاکتوں اور ان کی پناہ گاہوں کے تباہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ موجودہ دور میں روٹورا اور چاتھم جزائر میں پائے جانے والی جھیلوں کے ارد گرد ان کی قدرتی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ برڈ لورز میں مقبولیت کی وجہ سے آج بلیک سوان کو بطور آبی پرندہ ہر اچھے چڑیا گھر کی زینت سمجھا جاتا ہے۔ جوان بلیک سوان کا قد 3.5 سے 4.5 فٹ، پروں کا پھیلاؤ تقریباً 6 فٹ اور وزن 6 سے 7 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور کندھوں کے گھنگریالے پر انہیں مزید جاذب نظر بناتے ہیں۔ چپٹی چونچ شوخ سرخ رنگ کی ہوتی ہے جس کی ٹپ پر سفید رنگ کی دھاری ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ، ٹانگیں اور چپو نما پاؤں گرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ دوسری تمام سوانس کی نسبت ان کی گردن زیادہ لمبی اور خمدار ہوتی ہے۔ یہ اپنا زیادہ وقت پانی میں گزارتی ہیں۔ ڈیبلنگ واٹر فاؤل ہونے کی وجہ سے یہ صرف پانی کی سطح پر ہی تیرتی ہیں۔
डाइविंग डक्स की तरह पानी के अंदर गोताखोरी नहीं कर सकते। पुरसकून हालात में ये अपनी गर्दन कमर पर रखे और एक पाँव साइड पर बुलंद किए आहिस्ता आहिस्ता पानी पर तैरती हैं। लेकिन ब्रीडिंग सीजन में या खतरे के वक्त ये बहुत ज्यादा चौकस और चौकन्ना होती हैं। इस वक्त पानी में तैरते हुए इनकी गर्दन ऊपर को तनी हुई, विंग्स के पर फूले हुए होते हैं और रवैया बहुत गोसीला होता है। पानी से बाहर ये आहिस्ता आहिस्ता और झूम कर चलती हैं। जमीन पर ग्रेजिंग करते या खुराक की तलाश में दूर तक और देर तक चल सकती हैं। सुबह और शाम के वक्त ज्यादा एक्टिव होती हैं। पानी से बाहर या पानी में ये अक्सर अपने परों को अपनी चोंच से खुजलाती रहती हैं। इस अमल को सेल्फ प्रीनिंग कहते हैं। प्रीनिंग के दौरान ये अपने परों की सफाई करती हैं। इनकी दुम की बेस पर मौजूद प्रीन ग्लैंड से तेल नमा रतूबत खारिज होती है। ब्लैक स्वान अपनी चोंच की मदद से ये तेल नमा रतूबत अपने परों को लगाती है, जिससे ये वाटर प्रूफ हो जाते हैं और गीला होने से महफूज रहते हैं। ब्लैक स्वान कम गहरे और ताज़ा पानी में रहने वाला आबी परिंदा है। मौसम की शिद्दत की वजह से और खुराक की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना पड़ती है। ये ग्रुप बनाकर सीधी लाइन में या वी शेप में रात के वक्त परवास करती हैं और दिन को आराम करती हैं। परवाज के लिए फिजा में बुलंद होने के लिए इन्हें 150 फीट तक जमीन या पानी की सतह पर दौड़ना पड़ता है। परवाज के दौरान इनकी लंबी गर्दन आगे की तरफ और टांगें पीछे की तरफ तनी होती हैं और दूर तक सुनी जाने वाली आवाजें निकालती हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकती हैं। अगले ब्रीडिंग सीजन तक ये वापस अपने घोंसलों की तरफ लौट आती हैं। अमूमन इनका ब्रीडिंग सीजन फरवरी में शुरू होता है। 2 से 3 साल की उम्र में जवान होती हैं। नर को कॉब और मादा को पेन कहा जाता है। बज़ाहिर नर और मादा एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन नर जिसामत में मादा से कदरे बड़ा और ज्यादा गोसीला होता है। नर का सर और गर्दन भी मादा की निस्बत मोटी होती है। नर की चोंच ज्यादा सुर्ख, सीधी और बड़ी होती है। मादा की आवाज बारीक, लंबी और दूर तक सुनी जाने वाली होती है, जबकि नर की आवाज मोटी, भद्दी और कम तरानियां की होती है। ब्रीडिंग सीजन से पहले ये छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन के शुरू होते ही ये खुद को जोड़ों तक महदूद कर लेते हैं। एक नर और एक मादा आपस में जोड़ा बनाकर रहते हैं और ये बंधन जिंदगी भर कायम रहता है। इसी वजह से सवांस को मोहब्बत और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इनमें डाइवोर्स रेट सिर्फ 6% होता है। पानी में तैरते हुए ये आवाजें निकालकर एक दूसरे को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। पानी से खेलते हुए अपनी लंबी गर्दनें एक दूसरे की गर्दन के गिर्द लपेट लेते हैं। पानी में ही मेटिंग होती है। मेटिंग के बाद नर और मादा दोनों अपने विंग्स के साथ पानी से खेलते हैं और ऊंची आवाजें निकालते हैं। मेटिंग शुरू होने के बाद नर सूखी टहनियां इकट्ठी करता है और मादा इन टहनियों और पत्तों से घोंसला बनाती है, जिसका कतर 3 से 3.5 फीट होता है। मादा हर दूसरे दिन सुबह के वक्त सब्जी माइल सफेद अंडा देती है, जिसका वजन 300 से 350 ग्राम तक होता है। अंडों की तादाद 4 से 8 होती है। आखिरी अंडा देने के बाद इनक्यूबेशन का अमल शुरू होता है।
जिसका दौरानिया 35 से 42 दिन का होता है। नर और मादा दोनों अंडों की इंक्यूबेशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त मादा ही अंडों पर बैठती है। अंडों से जब चूजे निकलते हैं तो इनके जिस्म पर जर्दी माइल भूरे रंग के घने बाल नमा पर होते हैं, जिन्हें डाउन फेदर्स कहा जाता है। उस वक्त सिग्नेट्स रूही के गालों की मानिंद दिखाई देते हैं। चूजे का वजन 250 से 275 ग्राम तक होता है। अंडों से निकलने के 24 घंटों बाद माँ चूजों को लेकर पानी में आ जाती है। इस वक्त इनके प्रीन ग्लैंड एक्टिव नहीं होते। माँ अपनी चोंच से इनके परों पर प्रीन ऑयल लगाती है, जिससे चूजों के डाउन फेदर्स वाटर प्रूफ हो जाते हैं। वालिदैन चूजों को पानी से खुराक तलाश करना सिखाते हैं। नर और मादा दोनों चूजों की निगहदाश्त करते हैं। इस दौरान इनके उड़ने वाले पर जड़ जाते हैं। परों के जड़ने के इस अमल को मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग के दौरान नर और मादा दोनों बहुत चौकन्ना, चुस्त, होशियार और गसीले दिखाई देते हैं। 1 महीने के बाद इनके पर दोबारा से निकलना शुरू हो जाते हैं। माँ 2-3 हफ्तों तक चूजों को मौसम की मुनासबत से दिन में बावक़्ते ज़रूरत और रात को अमूमन अपने परों के नीचे लेकर बैठती है, और नर हर वक्त चौकन्ना होकर अपने खानदान की हिफाजत के लिए तैयार रहता है। अपनी कमर पर चूजों को बिठाकर पानी में तैरती ब्लैक स्वान का नज़ारा कुदरत के खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक होता है। चूजों की नशोनुमा बहुत तेजी से होती है। 3 माह की उम्र में इनके पर स्याह होना शुरू हो जाते हैं। 9 माह की उम्र में सिग्नेट्स का कद, जसामत और प्लूमेज जवान ब्लैक स्वान जैसा दिखाई देता है, और ये वालिदैन से अलग होकर मुख्तलिफ जोड़ों के हम उम्र सिग्नेट्स के साथ एक बड़ा ग्रुप बनाकर रहते हैं। परिंदों में हम जिन्स जोड़े बनाने का रुझान सबसे ज्यादा ब्लैक स्वान में होता है, जिसका तनासब 33% तक होता है। अक्सर 2 नर आपस में हम जिन्स जोड़ा बनाते हैं। इनका रवैया हकीकी जोड़े की मानिंद ही होता है। अपने कुदरती हैबिटेट में 2 नरों का हम जिन्स जोड़ा अंडों पर बैठी किसी मादा पर हमला आवर होकर अंडों समेत उसके घोंसले पर कब्जा कर लेता है। अंडों की इंक्यूबेशन भी करते हैं और चूजे निकलने के बाद उनकी निगहदाश्त भी करते हैं। कैप्टिविटी में बाज दफा इनके ब्रीड ना करने की एक वजह जोड़े का हम जिन्स होना भी होती है। जमीनी और आबी नबातात ही इनकी खुराक होती है। पानी में ये पानी की सतह से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। पानी में डुबकी लगाकर पानी के अंदर से ये अपनी खुराक हासिल नहीं करते। बाज औकात अपनी लंबी गर्दन को पानी में डुबोकर खुराक तलाश करते हैं। इस वक्त इनका जिस्म और दुम ऊपर की तरफ बुलंद होती है। जमीन पर मुख्तलिफ चाराजात, घास, बी और इजनास इनकी खुराक होते हैं। इनकी चोंच के अंदरूनी तरफ आरी नमा पेक्टन्स होते हैं, जो ग्रेजिंग में इनकी मदद करते हैं। स्वान्स की दूसरी तमाम नस्लों के बारक्स ब्लैक स्वान अपने इर्द गिर्द इंसानी मौजूदगी से खौफजदा नहीं होती। इसलिए फार्म हाउसेस, घरों के लॉन्स और छोटे चिड़ियाघरों में भी रखने के लिए ये एक बेहतरीन आबी परिंदा है।